Hey guys, welcome back to my YouTube channel Exam Dose 365. So we are continue this series on top most important idiom and phrases. We are continue our 800 top most idiom and phrases which comes in various competitive examination such as SSC, DRDO and various state examination in English section. Objective of this video: those who learn English and expand their knowledge, listening and speaking and working. This video also help in the various examinations such as SSC and DRDO and bank PO and clerk. A brief introduction about me. Myself, Pawan Sharma. I complete my BTech in electrical from MMU and got the 3rd rank in department. I have cleared SSC and railway examination and also cleared BRPLS examination. So we continue our first idiom of this series. So lay down arm. It literally means to surrender, हथियार डाल देना. Just like India and Pakistan going for a war, and Pakistan lay down their arms because they know that Indian army is a strong army in the world, so they cannot fight with us. So used in English, if soldiers lay down their arms, they stop fighting and give up their weapon. हथियार डाल देना, it literally means हथियार डाल देना means surrender कर देना. Just like जस्ट कहना कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है. मूव टू द सेकंड वन. मेकिंग हे while the sunrise. मेकिंग हे while the sunrise literally mean टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी. किसी भी अपॉर्चुनिटी का ग्रैब करना. यूज इन इंग्लिश. While I was living in France, I decided to make hay while the sun shine and learn how to speak French. Just like कोई आदमी फ्रेंच रहने के लिए गया just for the work, and he think that it is a better opportunity for him to learn French as well as. Move to the third one. Blow one on trump. Blow one on trump literally meaning खुद की तारीफ करना. जस्ट लाइक क्लास में अगर आप टॉप करते हो या आप एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, जस्ट लाइक आप SSC CGL क्लियर करते हो, तो आप हमेशा खुद की बड़ाई करते हो कि हाँ मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, मैं 24 घंटा में से 15 घंटा पढ़ा हूँ, देन आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ blow one on drum. Just like he was a very successful year and he very right to blow his own drum. The same meaning is written in there. Bear with means supportive. आप किसी के साथ खड़ा रहते हो. Be patient with somebody or something. Just like in difficult time आप किसी के साथ हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ. If you will bear with me a little longer, I will answer your question. Just like आप किसी के साथ ठहरा हो और एक दूसरे से बात कर रहे हो और आपके सामने वाले बंदे ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आप तो देने में लेट हो रहे हो, जस्ट लाइक टेकिंग टाइम, तो देन यू से इफ यू विल bear with me a little long, I will answer you. जस्ट लाइक कुछ समय मुझे और दो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर जरूर करूँगा. नेक्स्ट वन इज गिव एंड टू होता है इम्फोसाइज करना, बट इन नेगेटिव सेंटेंस. ये एक नेगेटिव वर्ड के लिए यूज होता है. जस्ट लाइक आई वर्क इन कस्टमर सर्विस, सो आई एम यूज टू गिव फुल वेन टू द फ्रस्ट्रेशन. जस्ट लाइक आप एक कस्टमर केयर में काम करते हो एंड पीपल कॉल यू इन द कस्टमर केयर एंड द कॉल रेफर टू यू एंड द कस्टमर गेट फ्रस्ट्रेशन ऑन यू दैट ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, they are frustrated on you. The simply meaning of this idiom. Next one is bond of content. Bond of content literally mean a dispute, matter of dispute. किसी बात पे एक झगड़ा हो जाना या किसी चीज़ पे एक बहस होना. जस्ट लाइक आप दो दोस्त में किसी बात पर झगड़ा हो या किसी पॉइंट पे झगड़ा हो कि हाँ इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तो वो
पॉइंट ऑफ बॉन ऑफ कंटेंट होता है किसी पॉइंट को लेकर। जस्ट लाइक आप जाना चाहते हो लद्दाख और आपका दो जाना चाहता है गोवा, तो ये बॉन ऑफ कंटेंट एक डिस्प्यूट है दोनों में। या आप अब इंग्लिश में देख लो तो आप देखते हो कि द एग्जामिनेशन सिस्टम has been long serious bond of content in this country. Just this is the real fact of our country. Just like SSC take 3 to 4 years to complete a single requirement process. Just like SSC CGL 2017 not declare their result yet. Many of them just waiting for the result. 2017 का CGL का अभी भी बहुत लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। Just it take 3 years long. So the meaning of content of bond of content is dispute. Next one is stand on your own feet. This is the clear by the English sentence stand on your foot में खुद के पैर पर खड़ा होना। जस्ट लाइक आप खुद का नौकरी लेके आप कमाना स्टार्ट करते हो या खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हो, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि हाँ ये खुद के पैर पर खड़ा हो गया है। और जस्ट लाइक अगर आप खुद सारा काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, इनकम भी घर पर ला के दे रहे हो, तो यहाँ पर कहा जाता है कि ही स्टैंड ऑन ओन फीट, ही इज इंडिपेंडेबल नाउ। जस्ट आप इंग्लिश में भी इसका मतलब देख ले, ही नेवर लेफ्ट होम आफ्टर स्कूल सो ही नेवर लर्न टू स्टैंड ऑन ओन फीट। जस्ट लाइक कोई लड़का है जिसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका है बट ये अपना घर से कभी निकला नहीं है। जस्ट लाइक मम्मा बुआ है तो घर में रह रहा है तो उसको कुछ पता नहीं कि स्टैंड ऑन ओन फीट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वन इज बाई क्विट एंड स्टार्ट। बाई क्विट एंड स्टार्ट लिटरली मीन इनरेगुलर, कभी भी रेगुलर नहीं जाना कहीं पे। जस्ट लाइक 2 दिन दौड़ा रनिंग किया, तीसरा दिन एब्सेंट कर गया, 1 दिन दौड़ा फिर 2 दिन एब्सेंट कर दिया, तो ही इज इनरेगुलर। यूजेज इन इंग्लिश इफ यू वर्क बाय क्विट एंड स्टार्ट यू विल नेवर अचीव मच। जस्ट लाइक आप SSC की तैयारी कर रहे हो और आप 2 दिन तो खूब पढ़ रहे हो 8 घंटा, पर तीसरा दिन आप फुल छोड़ दे रहे हो पढ़ना कि नहीं आज मैं रिलैक्स करता हूँ, फिर चौथा दिन आप पढ़ रहे हो 4 घंटा, फिर 5वां दिन 6ठा दिन रेस्ट कर रहे हो, तो आपका सक्सेस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पे यूज करते हैं बाय क्विट एंड स्टार्ट। नेक्स्ट वन इज ओवर हेड एंड ईयर। ओवर हेड एंड ईयर मीन्स कम्प्लीटली, सर से लेकर पैर तक कम्प्लीटली करते हैं। जस्ट लाइक इट इज एविडेंट दैट मेजर इज ओवर हेड एंड ईयर लव विथ हर। जस्ट लाइक कोई अपने just like soldiers love his country that they sacrifice their life with immediately effect. Next one is to call it a day. To call it a day means to conclude the proceeding. Just like after 14 years in politics, I think it is time for me to call it a day. Just like कोई politician है और वो 40 साल से politics में है, but he feel that he will unable to serve the politics, so he to call it a day. Just like वो अपना पॉलिटिक्स करियर अब खत्म करना चाह रहा है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं टू कॉल इट ए डे। नेक्स्ट वन इज टू पुट अप विथ। टू पुट इट विथ मीन्स टू टॉलरेट करना। टॉलरेट करना जस्ट लाइक आप सह रहे कुछ चीज़ को। जस्ट लाइक आप ऑफिस से आए, आपके घर पर आते ही आपके वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड तंग करना स्टार्ट कर देती, मैंने आपको ये काम दिया था, आपने ये नहीं किया, आप धनिया नहीं लेकर आए, जस्ट लाइक समथिंग कुछ भी, तो आप वहाँ पर कहते हैं मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, मैं सहन कर रहा हूँ। यूजेज इन इंग्लिश नो वन शुड हैव पुट अप विथ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। आप फालतू की बात नहीं कर सकते हो हर टाइम, तो आपको कोई टॉलरेट नहीं करेगा। जस्ट लाइक आप ग्रुप में बात कर रहे हो और कोई बंदा आके एक ही चीज 12 बार रिपीट कर रहा, तो आप कहते हैं टू पुट अप विथ। टॉलरेट बहुत मैंने कर लिया, टॉलरेट जस्ट सेट अप योर माउथ। सो दिस इज द टॉप मोस्ट 10 idiom and phrases of this series. This idiom and phrases already come in various SSC and DRDO and bank examinations. So I request you to learn this idiom and phrases which help you a lot in the examination. Thanks for watching. If you like this series, drop a like, comment and leave a comment. And do not forget to subscribe our channel and hit the like button. So this is the quote for us. Share as much as possible. So this is the end of this series. I hope you like this series and share as much as possible and subscribe my channel. Have a good day. Thank you.